Children, on the last week we already started chapter 7, town traders and craftsmen. We already learned that how the towns and the court cities and the temples were developed. In this next module we will understand and we will learn that pilgrim centers, how the pilgrim centers and court town capital and port cities developed in the ancient and the medieval history. So let's get started. So, children, last week we already started chapter 7, that is town traders and craftsmen. We will read in this chapter the medieval history and how the developed many towns, court towns, and trading centers, and the pilgrim centers and the craftsmen's centers where the trading going smoothly, where pilgrim centers running very smoothly, where towns and capital and core towns established and developed there, and rulers starting ruling from there. So we will read further in this chapter. Court town and capital town. Court town means the ruler or any dynasty established their own court and castle, and they starting living there, and from there they they control the whole empire and court over there. So capital town and the court town is the same. So here Harappa and Mohenjo-daro were the capital towns of Indus Valley's people. Indus Valley's people living there, Harappa and Mohenjo-daro were two major cities, and rulers living near Harappa and Mohenjo-daro, and all the administrations controlled over from these two cities. Ayodhya, that is the capital of Kosla, and Indraprasth, that is the What's kingdom, and Patliputra is called in Mahabharat. There is a Patliputra, Indraprasth, Ayodhya. All these are capital town. Modern Patliputra is right now is in Bihar. Modern Patna is called in history Patliputra. Okay, and it was Ajat Shatru who led the foundation of Patliputra, and Ajat Shatru was the Hindu ruler who led the foundation of Patliputra. Vaishali, capital of Lichvis, was flourishing town. Vaishali was the another capital who established by the Lichvis. एक जैसे डायनेस्टीज होती है, चोलाज है, गुप्ताज है ना, साउथ में चोलाज जैसे थे, गुप्त थे, वैसे ही लिचवीज एक डायनेस्टी थी जिसको वैशाली कैपिटल को बसाया था. और अंडर राजपूत there is several under Rajput and Delhi Sultanate also, and Mughals also, there are many many capital town was there, like Delhi under the Rajput, like Delhi, Kannauj, Mahoba, Chilin, Tripuri, Ajmer. All these are developed during the 800 to 1200 century. Delhi, Kannauj, Mahoba, Chilin, Tripuri developed on under the ruler of Rajput. In south there is a Badami and Devagiri, Tanjore were established that time on the different dynasties in the south. Madurai acted as a court town in south. Okay, Madurai court town भी था, capital town भी था, और मदुराई में pilgrim centers भी के नाम से famous हुआ. मदुराई में बहुत सारे temples हैं जो कि pilgrim centers भी थे, सेम बाद में पॉपुलर हुए. जैसे अजमेर है वो कोर्ट टाउन भी कह सकते हैं राजपूतों की, और बाद में वो पिलग्रिम सेंटर भी बना मुसलमानों की, वहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की वजह से. The great Cholas ruler Raja built a grand temple in his capital Tanjore, known as Raja Rajeshwar Temple. साउथ में एक तंजोर जगह नाम थी, वहाँ पे कैपिटल राजा राजेश्वर ने इस्टेब्लिश किया. उस कैपिटल का नाम ही अपने उसमें राजा ने अपने नाम पे रखा. पेशावर derives in the name of पुष्परसा, मीनिंग सिटी ऑफ फ्लावर्स. पेशावर जो नाम आया वो सिटी ऑफ फ्लावर्स के नाम से फेमस हुआ. पेशावर भी कैपिटल टाउन या कोर्ट टाउन था. अंडर दिल्ली और मुगल सुल्तान, दिल्ली और लोधी डायनेस्टी हुई जैसे, है ना. और अपन ने पढ़ा था, जब चैप्टर 5 पढ़ा था तो आपने पढ़ा था तुगलक डायनेस्टी में एक था रूलर जिसने नियर ओल्ड दिल्ली इस्टेब्लिश की थी. ओके, फिरोज़ाबाद, कोटला, और ये इस्टेब्लिश की थी शाहजहाँ के टाइम, शाहजहाँबाद. तो अंडर दीज मुगल्स एंड दीज मिडाइबल सुल्तान्स, दीज नोट दिल्ली. Okay, Old Delhi. Right now, Old Delhi are the example of court in Agra, Lahore, Fatehpur Sikri. Fatehpur Sikri is there.
नियर आगरा कैपिटल सेंटर्स आर देयर, आगरा, लाहौर एंड फतेहपुर सीकरी। लाहौर अब हमारे यहाँ अंडर में नहीं है, लाहौर कहाँ चला गया, अभी पाकिस्तान में चला गया। अर्लियर वो लाहौर हमारे इंडिया का ही पार्ट था, तो लाहौर भी कोर्ट टाउन रहा है मुग़लों के टाइम और मुग़लों से पहले जो मुस्लिम रूलर्स थे उसके टाइम। तो ये तो थी कोर्ट टाउन्स की बात। अब है टेम्पल टाउन और पिलग्रिम सेंटर। पिलग्रिम सेंटर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बेटा, वो प्लेस जहाँ पे कोई मंदिर या उसके लिए इस्टेब्लिश करता है राजा और वहाँ पे रिलीजियस एक्टिविटी होने लग जाती है। धीरे धीरे एक टाउन डेवलप होने लगता है। जैसे एक टेम्पल इस्टेब्लिश हुआ, उसके पास प्रसाद वाला आ जाएगा, फूलों वाला आ जाएगा, पानी रहेगा और धीरे धीरे एक टाउन के शेप में वो कर लेगा। धीरे धीरे वहाँ लोग रहने लग जाएंगे। तो जितने भी ये टाउन्स है ये पिलग्रिम सेंटर्स कहलाए। और सम ऑफ टाउन टेम्पल्स डेवलप्ड एज ए टेम्पल टाउन एंड पिलग्रिम सेंटर्स। और राजा इसको राजा के टाइम भी पिलग्रिम सेंटर इंपॉर्टेंट होते थे, क्योंकि हर एक डायनेस्टी में बहुत सारी वेल्थ होती थी, बहुत सारा चढ़ावा भी आता था और राजा के भी वेल्थ होती जो कि वो मंदिरों में ही रखते थे, क्योंकि मंदिरों पे ये माना जाता है कि रिलीजियस जो है वो होली प्लेसेस है और होली प्लेसेस पे जल्दी से कोई अटैक नहीं करेगा, जल्दी से कोई वॉर में उसको छेड़ेगा नहीं। तो अधिकतर पुराने टाइम में राजा महाराजा जो अपनी गोल्ड है, अपनी करेंसी है, अपनी वेल्थ है, वो वहाँ पे रखते थे। इसलिए रिलीजियस जो टेम्पल्स हैं वो राजा बनाते थे और उसको फ्लोरिश करते थे। सांची है, सारनाथ है, बोध गया, हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, मथुरा, इलाहाबाद, बनारस, जगन्नाथपुरी, इनेपुरी उड़ीसा, द्वारकापुरी, अजमेर, तंजौर टेम्पल की वजह से फेमस है तंजौर, मदुराई, ठीक है। फतेहपुर सीकरी में दरगाह है सलीम चिश्ती, उनके बेटे मोइनुद्दीन चिश्ती की बेटे की दरगाह है फतेहपुर सीकरी में। अमृतसर और पटना, ये सारे के सारे पिलग्रिम सेंटर्स हुए यहाँ पे। ये सारे के सारे रिलीजियस टेम्पल है, या तो सिखों के या मुस्लिम के या हिंदुओं के। ग्रेजुअली द लार्ज नंबर ऑफ पीपल लाइक प्रीस्ट, traders, workers, artisan, settled near these temples, town and pilgrim centers. Gradually ये सब वहाँ पे स्टैब्लिश होने लगे। जैसे प्रीस्ट हो गए, वर्कर हैं, मंदिरों में काम करने वाले वर्कर्स हैं, और ये ट्रेडिंग वर्कर्स हैं, आर्टिस्टिशियन है, मूर्ति बनाने वाले हैं, धीरे धीरे वहाँ पे सेटल हो गए उस पर और टेम्पल वो फ्लोरिश होता गया। एंड देन लेटर ऑन दी सेंटर्स बिकम इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ लर्निंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। और धीरे धीरे वो रिलीजियस सेंटर्स के साथ साथ वो लर्निंग सेंटर्स भी बन गए। वहाँ पे सिखाया जाने लगा पूजा पाठ और एजुकेशन, और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी वहाँ पे होने लगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी डेवलप हो गई। तो वो धीरे धीरे से ये ग्रांड होते गए ये सारे सेंटर्स। नेक्स्ट टाइप की जो हमने पढ़ी थी डेफिनेशन में आपको पहले ही दे चुकी हूँ, पोर्ट सिटीज़। पोर्ट मतलब जो कोस्टल एरिया, कोस्टल जो एरिया है, एज जो है ओशन के किनारे पे, क्योंकि हम ट्रेडिंग करते हैं कहीं पे भी, तो ट्रेडिंग एक शहर से दूसरे शहर पे सामान जाता भी है, आता भी है, और दूसरे विदेश भी जाता है। तो एक कोई पर्टिकुलर सेंटर चाहिए होता है जहाँ पे कि हम सामान को, लगेज को रख सकें, या फिर लगेज को वहाँ से रख के नेक्स्ट उस डेस्टिनेशन पे ले जा सकें। इसलिए पुराने टाइम में, एंशियंट टाइम पे भी, मिडाइवल में भी बहुत सारे पोर्ट सिटीज़ थे जो कि ट्रेडिंग, स्पेशली ट्रेडिंग के लिए स्टैब्लिश किए गए थे। बोथ इन द एंशियंट एंड मिडाइवल पीरियड इंडिया हैड डेवलप्ड बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड ऑन लार्ज स्केल। हमेशा इंडिया में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही स्केल पे एक्सपोर्ट भी होता है और इम्पोर्ट भी होता है। अब जैसे मान लो सूरत से सामान लाना है, तो सूरत से सामान लाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिएगा, दिल्ली भी लाना है, और बीच में हमें सामान लादने के लिए या अपलोड करने के लिए या उसको खाली करने के लिए कुछ सेंटर चाहिएगा, बेयर हाउस चाहिएगा। तो ये बेयर हाउस जो है जहाँ पे सामान रखा जाता था या सामान इकट्ठा रखा जाता था कि नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे लेके जाना है, ये बड़े बड़े बेयर हाउस ही पोर्ट सिटीज़ का रूप लेते गए। Some of the trade was carried through the land route, but sea route also play important while trading foreign countries। और foreign countries में क्योंकि तीनों सिरे से हमारे इंडिया नीचे का पार्ट है, वो तीनों सिरों से घिरा हुआ है ना, तो यहाँ से भी दूसरे कंट्रीज़ में अगर हमें सामान रखना है तो सी रूट प्रेफर करते हैं, और सी रूट कंपैरेटिवली चीप भी होता है। तो एंशियंट टाइम में भी, मिडाइवल में भी और मॉडर्न में भी सी रूट जो है बिजनेस के लिए अभी भी चलता है। तो सी रूट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रूट वाइल ट्रेडिंग फॉरेन कंट्री में बड़ी बड़ी शिप्स जाते हैं, कई के दिन में सामान पहुंचता है, तो वो जो पोर्ट सिटीज़ हैं वो डेवलप हो जाते थे सामान को ढोने या सामान को
आगे पहुंचाने के लिए काम करते हैं। सो वेरियस पोर्ट सिटीज़ डेवलप्ड बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट, और ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों साइड से बहुत सारे कोस्टल जो है सिटीज़ डेवलप हो गए ग्रेजुअली। अब ये पुराने सिटीज़ हैं, अभी कुछ तो ये इनमें है ही नहीं। कैम्बे, सोप्रा, ब्रोच, ये सब तो है ही नहीं, आपने सुना होगा आप, है ना। पोर्ट सिटीज़ थी ये मिडाइवल और एंशियंट टाइम पे। और कोचीन, गोवा, कुआलम हैड सूरत ऑल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट। और उसके बाद सूरत बना, कोचीन बना, गोवा स्टैब्लिश हुआ, कुआलम स्टैब्लिश हुआ। ये ब्रिटिशर्स और डचेस के टाइम जो इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट बने, जो आज भी प्रेजेंटली भी यहाँ पे सी पोर्ट और सी ये हार्बर है। बिजनेस होता है, ट्रेडिंग फॉरेन कंट्री से हमारे पास ट्रेडिंग होता है यहाँ पे, है ना, अभी भी होता है। और पुराने जो ये बरोच है, सोपरा है, ये सब अभी नहीं है। अफ्रीकन, साउथ वेस्ट एशियन एंड मे बी यूरोपियन कंट्रीज वांट्स इंडिया स्पाइसेस। और इंडिया के स्पाइसेस हमें हमेशा हमेशा से ही फेमस है, लोग ट्रेडिंग करते हैं, बाहर भेजते हैं। तो अफ्रीकन, साउथ वेस्ट एशियन और यूरोपियन कंट्रीज वांट आवर स्पाइसेस। इसीलिए तो ब्रिटिशर्स स्पाइसेस के लिए तो आए थे हमारे यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए। ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति बंगाल में है, वो भी एक ट्रेडिंग टाउन बना था। अब तो वो नहीं है, इतना यून्स रह गए, लेकिन उस टाइम वो बहुत चला था। और उसकी जो थी उसकी ट्रेडिंग में वो टाउन इम्पॉर्टेंट था। विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में, वर द मेजर सी पोर्ट विच इंडिया मेंटेन्ड कमर्शियल रिलेशन विद द साउथ ईस्टर्न कंट्री। विशाखापट्टनम जो सी पोर्ट था उसमें साउथ ईस्टर्न कंट्री से रिलेशन रखने के लिए, ट्रेडिंग रिलेशन रखने के लिए आंध्र प्रदेश में सी पोर्ट स्टैब्लिश किया था। ठीक है, रूलर्स ने, जो भी प्रेजेंट रूलर रहा होगा उसने स्टैब्लिश किया। सो दीज आर द पोर्ट सिटीज एंड द पिलग्रिम सेंटर्स एंड द कोर टाउन। तीनों हमने पढ़ ली। ट्रेडिंग टाउन हम नेक्स्ट मॉड्यूल में पढ़ेंगे, ट्रेडिंग टाउन कौन कौन से स्टैब्लिश हुए। अब है मैचअप। अजमेर में क्या है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ठीक है, हम्पी क्या था, विजयनगर एम्पायर था, हम हम्पी के बारे में भी पढ़ेंगे। सूरत जो है अभी कहाँ है, ट्रेडिंग टाउन है। प्रेजेंट एंशियंट में भी था, मिडाइवल में भी था सूरत, और प्रेजेंट में भी ट्रेडिंग टाउन है, फेमस है। राइट नाउ इट इज़ इन गुजरात। मसूलीपट्टनम क्या है, मसूलीपट्टनम इज सिचुएटेड इन एक पोर्ट टाउन था मसूलीपट्टनम, और ये आंध्र प्रदेश में था। कैलकटा राइट नाउ अभी भी है, ट्रेडिंग की वजह से पोर्ट टाउन बना, ट्रेडिंग की वजह से इंपॉर्टेंट था कैलकटा, और कैपिटल भी बना ब्रिटिशर्स की क्या, और ब्रिटिशर्स ने इसको स्टैब्लिश किया कैलकटा को। अर्लियर इट वाज ए स्मॉल विलेज अंडर कंट्रोल बाय द डचेस। डचेस ने फिर उनको ब्रिटिशर्स को दे दिया, कैलकटा और मुंबई दोनों स्टैब्लिश किए ब्रिटिशर्स ने। देन चिंसुरा इज अंडर कंट्रोल इन ए डचेस, एक पोर्ट टाउन था, उसको डचेस ने डेवलप किया और डचेस के अंडर कंट्रोल था। दीज आर द मैचअप यू हैव टू डू इन योर नोटबुक। नेक्स्ट वी हैव हाउ डिड कोर टाउन एंड कैपिटल डेवलप। तो हमने पढ़ा है व्हेन मोर एंड मोर पीपल बिगिन टू सेटल इन दीज विलेजेस। धीरे धीरे विलेजेस में सेटल होना शुरू कर देते हैं, फिर धीरे धीरे और एक्टिविटी बढ़ जाती है। कुछ सालों में ग्रेजुअली, मतलब इन इंस्टेंट नहीं, ग्रेजुअली मैनी ऑफ दीज डेवलप इनटू द टाउन्स। फिर ये जो बड़े गांव हैं वो टाउन्स में डेवलप हो जाते हैं। और ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द रूलर्स, रिलीजियस पर्सन, एंड दे फ्लोरिश्ड एज ए कोर्ट और कैपिटल टाउन। और धीरे धीरे रूलर्स की एक्टिविटीज़ से की वजह से, रिलीजियस पर्सनस की एक्टिविटी की वजह से, क्राफ्टमैन और ट्रेडिंग की एक्टिविटी की वजह से वो जो टाउन है वो कैपिटल में टर्न हो जाता था। कई बार तो कैपिटल बनवाते ही थे, डेवलप ही करते थे रूलर्स बिल्कुल नई। और कई बार उस शहर को ही इंपॉर्टेंट था, जैसे दिल्ली हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है तो उसको एज ए कैपिटल बनाते थे। मोस्ट ऑफ द डायनेस्टीज में दिल्ली और आगरा और कैलकाटा भी कैपिटल रहे हैं इंडिया की। पहले ब्रिटिशर्स के टाइम आपको पता है इंडिया कैपिटल कोलकाता थी, बाद में उन्होंने दिल्ली इस्टेब्लिश की थी। और मिडाइवल में दिल्ली थी, मुगलों में दिल्ली, आगरा और फतेहपुर सीकरी रही। ठीक है, और आज भी कैपिटल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉडर्न टाइम में भी कैपिटल में ही गवर्नमेंट, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है वो बैठती है, उनकी ऑफिसेज होती है और पार्लियामेंट को रन करते हैं। तो हमेशा हर जगह आप देखो, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट की जो पार्लियामेंट है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, अभी तो हमारे राजा नहीं है, लेकिन फिर भी दिल्ली हमारी कैपिटल है। तो मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज, गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड द गवर्नमेंट पार्लियामेंट सेशन इज गोइंग ऑन द कैपिटल। ऐसे ही राजस्थान की कैपिटल हमारी जयपुर है, तो जयपुर में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो बैठती है 5 ईयर्स के लिए, सारे फंक्शंस वहीं से ऑपरेट होते हैं। अब क्वेश्चन सेकंड है, नेम एनी 5 पिलग्रिम सेंटर्स। पिलग्रिम सेंटर्स मतलब समझ ही गए होंगे, फेमस टेम्पल्स जो रिलीजियस एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट हो,
ना। तो गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में, पंजाब में फेमस है। जगन्नाथपुरी बहुत पुराना टेम्पल है कृष्ण जी का, भगवान कृष्ण जी का, उड़ीसा में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है जो कि अजमेर में है, जो कि मुग़लों के टाइम से वो इस्टेब्लिश है। सन टेम्पल है कोणार्क में, उड़ीसा में, जो कि फ़ेमस है। सन की रेज़ फर्स्ट में वहाँ पड़ती है, ऐसा कहा जाता है, बहुत फेमस है वहाँ पे ही। वहीं सन टेम्पल से ही हमारे फ्लैग में जो 24 आवर्स की जो तिल्लियाँ हैं, अशोक चक्र जो है, चक्र है, वो वहाँ से लिया गया है ना। कैलाश टेम्पल है शिव जी का, जो अजंता एलोरा केव में बना हुआ है, एक सिंगल केव में, ये महाराष्ट्र में है, स्टैब्लिश्ड है। तो ऑल दीज, और अपन चैप्टर 6 में भी बेटा कर चुके हैं, जब हम ओरल कर रहे थे तो ये सब थे सेंटर्स थे, तो आपको याद भी होंगे। आप अपनी मर्जी से भी पिलग्रिम सेंटर्स लिख सकते हो। आई होप यू आर डू बेटर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन। और अब आपको पिलग्रिम्स सेंटर्स के मैं फेमस जो इंडिया के हैं वो आपको एक क्लिप दिखा रही हूँ। Okay, and just do your work within time beta and send us to with according to the schedule. I hope you are learning well at home. Bye all of you and thank you so much. Children, these are famous pilgrim centers of India. That is Mahabali Bodh Gaya temple, where it is a world famous Buddhist temple where the Buddha have attained the enlightenment. It is a beautiful temple situated in Bodh Gaya. That is Jagannath Puri. It is situated in Puri in Odisha. Shri Jagannath is a Hindu temple and one of the 4th pilgrim destination for Hindu Char Dham. And the next temple, some are very ancient, and next is Amarnath Dham. अमरनाथ यात्रा जो फेमस है, जो कि अब नेचुरली शिव जी का जो शिवलिंग है वो अपने आप नेचुरली बन जाता है, स्नोफॉल होती है तब। ओके, इट इज़ ऑल्सो वेरी फेमस. And Shirdi temple near in the village of Shirdi near Mumbai. Sai Baba is very popular saint worshipped by people of Hindu, Jerusalem, Muslim and all around the world. It is also very famous and richest temple in India. That is Basilica Church, ancient church situated in Goa. This is World Heritage Monument in one of the oldest church in India as well as in Goa also. And मम्मी भी है यहाँ पे एक, आपने देखा होगा, कभी गए होंगे तो जरूर देखना, oldest church. And that is a golden temple in Amritsar in Punjab. We already learn about this temple that Guru Ramdas was developed the city Amritsar, and that temple also developed that time. It is a very ancient temple at the time of Mughals. That is the Dargah of Ajmer Sharif. Moinuddin Chishti's Dargah is there. The Dargahs Moinuddin Chishti is situated in Ajmer, visited by Muslim pilgrims as well as Hindu and Sikh also. And it is a very famous at Ajmer in Rajasthan and all over the in India also. यहाँ पे अकबर भी गए थे जहांगीर के लिए अपने उसकी मन्नत मांगने, तो इसलिए उनका नाम सलीम रखा. ये सिद्धिविनायक गणपति मंदिर is the richest temple in Mumbai and one of the very famous temple in Maharashtra. That is Vaishno Devi temple. It is situated in Jammu Kashmir near Katra. Vaishno Devi is most second visited religious place India after the world famous Tirupati Venkateswaram Balaji Mandir is there. Vaishno Dham temple is there, and that is the Venkatesh Balaji. Tirupati Balaji is a very famous temple is there.